Bansal family to congratulate recent of this great institution and all those colleagues whom I met just now. I heard about this institution even before. I would be bilingual, it is always with you know. Then how many you can reduce with even? So bilingual is okay, no? Hindi, English together. कितने लोगों को अंग्रेजी समझ में आता है? मेरी ओके, नो प्रॉब्लम. So I am not naming anyone now, but I came here because of great capacity to told me that to come here. When I landed in Haryana maybe 20 years ago, that was the time when the institution was just after, I remember, 98. I came to Haryana 97 to GJ. 98 something this institution started. आप सब लोग अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ना, तो मेरा बात होगा. तो आज इतना बढ़िया दिन है. Before starting the whole activity, because it's the first day, I want to begin by chanting a sloka from the Rigveda, because that is very important and needed for you. This is what I feel, being the first day. This sloka, meaning of this sloka is the thought process of all Bharatis, Indians. ये वही करना है. ये बनता है. ये थोड़ा कम कर. So I'll try to hold it. Is it audible now? Yes. आपको सुनता है ना? तो ये भारत का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है. We don't have any big ambitions in life, only very few things. The second part of the sloka, probably you would have heard of it. We use in many pujas, many activities. You would know. May not be the first. तो मैं पहले चैंट करेंगे, बाद में बताएंगे. Then I will take it. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यैस्तुष्टुवाक्यं सस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो विश्ववेदिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. श्लोका भद्रम करने की meaning, I want to listen auspiciously. The first requirement in Bharat is nothing but I want to listen auspiciously. Bhadram karne ki. Shruno means avanam. Listen. अंग्रेजी में दो वर्ड listen and hearing. अभी आप यहाँ बैठ के ना कई सब बाहर से आएगा, फैन का साउंड है, वो सबको हियरिंग बोलते हैं. आप लोग मुझे फोकस किया तो मैं क्या बात करता है वो सुनने का है, उसको लिसनिंग में रजिस्ट्रेशन. इसलिए अब क्लासरूम में है ना हर टीचर बोलते हैं बच्चों लिसन. बच्चों हियर नहीं बोलते, बच्चों लिसन. लिसन नहीं, स्टूडेंट श्रवण. एक शुड गो टू द राइट. सो भद्रम करने की समझे आमा देवा.
Bhadram Pasye Makshatri. I want to see auspicious. Whereas second requirement, I want to see auspicious. I am very lucky because I can see beautiful, handsome, young boys and girls sitting in the crowd, and also handsome people. आप लोगों को इतना लक नहीं है, you have to see this old face, white hair, यही फेस देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। मैं लकी हूँ ज़्यादा, because I can see all. तो भद्रम पश्ये मानुषाकृते, I want to see auspicious. My second requirement. Then my third requirement is, I want to think auspicious. Three things. याद रखो, आज ये ब्रेक में जाना चाहिए। I want to listen auspiciously. I want to see auspiciously. I also want to think auspiciously. Only these three requirements are सबसे important. To do this, what I want, directly to work in sustain. जैसे एक लेबर रिटर्न मिला, I want a healthy life and healthy body. I need healthy life and body. Not to hit somebody. वहाँ आपने डिस्प्ले किया पहलगाम करने में देखा अभी एक्सिबिशन going there and looking for a particular religion something and killing people. That is not the want to. I don't want to shout at anybody. किसी को shout I mean starting करने के लिए नहीं shout करने के लिए मेरा requirement खाली यही है ये तीन काम करने के लिए I want a healthy independent. देव जितना दिया आयु हो मुझे भगवान ने कितना आयु दिया है उतना नहीं यही काम करने का बाकी कुछ नहीं कितना दिन आयु है उतना दिन मुझे यही करना वो 50 साल होगा 60 होगा 70 होगा 90 होगा 100 होगा 120 होगा 120 years in भारतीय संस्कृति what we call पुरुषायुष Purushayus doesn't mean it's a masculine gender. It's a generic thing. Both for male and female is a Purushayus. Purusha Sukta is not meant for Purusha. Purusha and Prakriti are two different expressions in our system. So whether you live 120 years, 100 years, 50 years, 80 years, 60 years, what you want is healthy body and healthy health. अभी आप लोग मेरे आगे बैठा है, सपोज आपका पीछे और नींद में पेन है, बॉडी में टेम्परेचर हेल्थ नहीं है, आपको यू कैन नॉट लिसन, साइड इम्पॉसिबल टू लिसन. यू नीड टू बी हेल्थी टू डू ऑल दीस थिंग्स. एंड पहला रिक्वायरमेंट क्या बोला मैंने, हमें ऑस्पिशियस चीज सुनने का. ऑस्पिशियस चीज सुनने का है तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होता है. रीजन क्या है, my ear is nearer to my mouth. Whatever I speak, who is going to listen that first? So there is a nearest place. Sound that travels from here to here, then I can listen. So indirectly, our digital gurus are telling, rishis are telling, आप अच्छा बात auspicious बात. So मैं अच्छा बात किया तो naturally you will talk to me. You don't need to shut that because I am already speaking. So we are indirectly instructed to speak auspiciously. That's the meaning of this book. And when you do so, भगवान ने कितना आयु दिया उतना वो whatever religion you are. If you are a Christian, you talk about the Lord like if you are a Muslim, you talk about Allah. It all depends. And if you don't believe, no problem. Think about nature. All up to you. There is no forcing. You are born, it is a fact. So you are here. So our prayer is this to do these things. Whatever. Now, स्वस्ति में इंद्रो वृद्धस्य प्रवाह. आपने पूजा में सुना होगा. घर पे आके करता है हवन के पहले की पूजा. स्वस्ति में इंद्रो वृद्धस्य. मीनिंग है इंद्र भगवान से प्रार्थना करता है स्वस्ति के लिए वृद्धि मन. वृद्धि means progress. In those days, modern gods have not existed. No Rama, no Krishna. It's a Vedic period.
वैदिक साइड पे यही था, इंद्र भगवान से ये प्रार्थना है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा पुष्पदेवः। पूषा कौन है? पूषा की सन गॉड सूर्य भगवान, भास्कर रवि कोई भी नाम हो सकता है। Why sun god is called Pusha? It is derived from a word called Poshanam. Poshanam is nourishment. हमें nourishment कौन देता है? Just imagine next day one week there is no sunlight. What you will do? I'll tell you, you will have all the problems will start. You will have pains in your body pain, fever, all will start. You can have a light source like this. D50 light source. आज के दिन में वही यूज करते हैं, 5000 डिग्री केल्विन, almost matches with the diffused daylight. But we cannot compare with the light what we get from the sun. So the portion is coming from Surya Bhagavan. इसलिए सूर्य भगवान को हम क्या बोलते हैं? पूषा। स्वस्ति न पूषा, स्वस्ति देने के लिए सूर्य भगवान के पास स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न साक्षी कनिष्ठ Sakshya is a typical Sanskrit word for mythical word. What is the mythical word? Garuda. You are praying to Garuda. You know why? If you pray just for Vishnu, Vishnu will come alone. Vishnu अकेला आता तो भगवान विष्णु उल्लू के ऊपर और यहाँ स्पेसिफिक है, हमारे लिए लक्ष्मी भी साथ आना है, संस्था चलाने के लिए पैसा चलेगा, बिना पैसा कैसे चलेगा? इनकम भी चाहिए। तो हमारे लिए विष्णु भगवान के साथ सरस्वती देवी भी आना चाहिए, लक्ष्मी भी आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती लक्ष्मी या सेम आवाज में तो सही चाहिए, तो एजुकेशन भी हो जाएगा, हो जाएगा, संपत्ति भी हो जाएगा। Your wealth will also come together. That is why स्वस्ति न साक्षी अधिष्ठानेमिति, अधिष्ठानेमिति which I don't want any disease. ये कोरोना टाइम में हम इतना सफर किया, 2 साल वेस्ट हो गया, क्या कर सकता है? तो ऐसा एक अधिष्ठान डिसीज अभी नहीं आना चाहिए, अभी हम बहुत ऐसे डिसीज स्वस्ति नो बृहस्पति होता, बृहस्पति पूरी बृहस्पति गुरुओं का, the guru का गुरु is बृहस्पति। So बृहस्पति धातु, धातु देंगे, धातु में केवल गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और फ्यूल सेल चाहिए, हाइड्रोजन गाड़ी है, कुछ न कुछ फ्यूल चाहिए, हमारे लिए चलने के लिए फ्यूल चाहिए। आपका फ्यूल क्या है? नॉलेज, एजुकेशन। तो कौन देता है? गुरु देता है। ये दिया तो आगे चल सकता है, आगे चलने के लिए चाहिए। तो बृहस्पति का उसके बाद हर शांति मंत्र भारत में 3 बार शांति बोलता है, आपने सुना होगा, शांति शांति शांति, देखा है ना? उसके एक पर्पस ऐसा नहीं बना। The first शांति is meant for the entire world, universal। आप ये देखिए, वार हो रहा है यूक्रेन में और इन गाजा में, affecting the whole world. So we need शांति around the world. Then we also need शांति among the society. अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपके बीच में शांति नहीं है तो क्या मिलेगा? So second शांति is meant for the society, and third शांति is आत्म शांति। So whenever you chant any शांति mantras like this in home, puja or anywhere, please remember that ध्यान पे रखो, पहला शांति loudly chant करने क्या है, वो पूरा दुनिया के लिए। सेकंड शांति सोसाइटी के लिए, दूसरा शांति ये उसका। अभी देखिए क्या थॉट प्रोसेस हमारा क्वेश्चन को, दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस व्हाट वी हैड इन भारत। अभी with that note, with that slogan, I want to bless each one of you to have an excellent beginning into great education, so that you will get a wonderful life. The first part was more of a blessing, वो काम हो गया।
अभी इसके बाद में थोड़ा लाइटर मोड में आएंगे। मैं आपको कुछ स्टोरी जैसा बताना चाहता हूँ। Once there was a small boy in a village. ये बंदा विलेज में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? यहाँ से 2750 किलोमीटर इतना दूर पैदा हुआ। कहाँ नहीं, कई दूर साउथ में। और I am telling about myself. There is nothing to hide. मैंने पैदा हुआ था ऐसा एक छोटे विलेज में 2700 किलोमीटर यहाँ से। मैं केरल में पैदा हुआ। मेरा गांव मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 82 किलोमीटर दूर था। सोचिए इतना दूर। उस समय एलकेजी यूकेजी यूज नहीं था, उस समय इसका मालूम भी नहीं था। तो हम स्कूल में गए। मैं आज तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा, दूसरा स्कूल में पढ़ा नहीं। तो सब लोगों को गांव में उस समय ऐसा सोच था, 3-4 बच्चा इकट्ठे ज्वाइन कर। तो मेरा भाई मैं और आप तीनों को इकट्ठे। मुझे इसलिए थोड़ा बेनिफिट मिला, मेरा एक उम्र कम हो गया रिकॉर्ड में। मैं 60 होने वाला हूँ लेकिन 59 रिकॉर्ड में। तो मेरा भाई मेरा सब इकट्ठे गया। तो मेरे लिए उनको इकट्ठे वहाँ अपना अंकल की जाके बोलता है, हाँ ये साथ हम सबका डेट ऑफ बर्थ एक ही मई में होता है, अप्रैल और मई। जून में शुरू होता है ना, तो मई में एक दिन रहता है, वो दिखता है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट ये। और मैं पैदा हुआ एक परिवार में। वो परिवार का काम मंदिर में काम करता था। मेरा दादाजी एक प्रीस्ट था, वहाँ मंदिर में पूजा करता था। तो मेरा भी काम करता है, सुबह उठ के वहाँ जाके हेल्प करता। 4:30 बजे उठो, जाओ, थोड़ा घर के पीछे एक नदी है, वहाँ स्नान करके जाके हेल्प करता। और मंदिर में चप्पल यूज नहीं कर सकता। तो हम मंदिर से आने के बाद ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद भागता है स्कूल के। तो हमें मालूम ही नहीं था चप्पल पहनने का है, चप्पल ही नहीं था। मैं 4th स्टैंडर्ड तक नहीं गया चप्पल, मैं चप्पल यूज ही नहीं किया। मालूम ही नहीं था गाँव में कौन यूज करता है, ऐसा ही करता है। और मेरा स्कूल मुझे आज भी याद है, एक हॉल था ऐसा, लॉन्ग हॉल। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में इधर बैठा, 1 साल के बाद मास्टर जी बोला थोड़ा उधर बैठो। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पहुंचा, पास हो गया सेकंड में। 1 साल के बाद वहाँ पहुंचा, नेक्स्ट 3rd स्टैंडर्ड में आ गया और 4th में आ गया। एक ही हॉल से, वहाँ पार्टीशन भी नहीं था। 4th के बाद बोला 4th हो गया, चलो अगला स्कूल। 5th में हम लोग ऐसा ही पढ़ा। और ये पढ़ने समय लेकिन एक एडवांटेज, पहला है चप्पल नहीं पा, बैरफुट में चलता हूँ। मेरा स्कूल था ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर था घर से। तो हम उम्र 5 से 2 किलोमीटर पैदल करते हैं, आना जाना पैदल। तो जाने रास्ते में सांप आता है, हमें मालूम है इसको कैसे हैंडल करेंगे। आवारा सांड आता है, हमें मालूम है क्या करेंगे। कुत्ता आता है, हमें मालूम है क्या करेंगे। मंकी है तो क्या करेंगे, सारा मालूम। और रास्ते में ये सारा प्रकृति देख के जाता हूँ, एंजॉय करके एक टीम पे जाता हूँ। ऐसा ही जाता है, बाहर जाके देखता हूँ, बाद में वापस देखते। और मैं स्कूल के बाद LP स्कूल, UP स्कूल के बाद हाई स्कूल में, वो भी गाँव में है लेकिन वो हो गया 5.5 किलोमीटर घर से। तो मेरा पैदल करने का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, 5 + 5 10 किलोमीटर। अच्छा है, ऐसा करता है। और ये जाने रास्ते में ये भी सीखता है, कहीं सीखने के बाद बहुत अच्छा है। और रास्ते में कुएं से पानी पीता है, कोई घर नहीं था, पानी अच्छा था, प्रदूषण नहीं था, ऐसा ही पीता है, जाता है। और उस समय 11th और 12th स्कूल में नहीं, मेरा एज वालों को मालूम होगा। 10th के बाद PUC होता है, प्री यूनिवर्सिटी। 11th और 12th कॉलेज के साथ। तो 11वीं क्लास में मैं एक कॉलेज में पहुंचा,
लेकिन वो 15 किलोमीटर बस में जाना था। लेकिन ऑल दी स्टडीज प्री बारहवीं तक मैंने सीखा अपना मदर टंग। मेरा मदर टंग का नाम है मलयालम। इसे Italian pro. Those who want to study computers must be MA, MBA, MBA. Left to right, right to read. It's the same word. मलयालम। वो भाषा बहुत कठिन है। आप सोचें ऐसा नहीं। लोग ऐसा बोलता है एक बोतल में पत्थर डाल बाद में साउंड बना कड़क ऐसा होता है, सुनने में समझ में नहीं आता। ऐसा है तो सारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारा ये भाषा में सीखा। टीचर है कि मलयालम में ही बात करता है, ऐसा ऐसे ये सब सीखने के बाद मैं इंजीनियरिंग में पहुंचा। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला पूना में। मेरा एनालिटिकल स्किल मैथमेटिक्स सब अच्छा था, तो जहाँ से एडमिशन मिला ऐसा मिलके मैं वहाँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे क्लास में पढ़ते समय हर बच्चे को पूछा 7th क्लास में आपको क्या बनना, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। मैं बोला उस समय मुझे सब इंस्पेक्टर बनना। ऐसे बहुत बढ़िया ना, देखने में गाड़ी है, कैब है, गाड़ी है, तो बहुत बढ़िया फीलिंग था सब इंस्पेक्टर। थोड़े दिन के बाद हाई स्कूल में जाके टीचर पूछा आपको क्या करना है, मैं बोला मुझे आर्मी ऑफिसर। By the time आर्मी जवान को फील्ड में आ गया, आई रिमेंबर दैट मैं ऑफिसर इन आर्मी। ये बोल के बाद में आगे निकला। Then after this work, I did a diploma also. I just forgot to tell you in printing technology. There was an institute पास में, वहाँ में स्टेट में रैंक भी मिला। Anyway मुझे एक सीट मिला पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे बहुत दूर है मेरा घर से, पहली बार ट्रैवल करता हूँ घर के बाहर। वहाँ पहुँचा, मेरा सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या था, पहले कुछ नहीं समझ में आता। टीचर्स आके बढ़िया अंग्रेजी में बात करते हैं, हमारा सिंगर ऊपर करता है, कुछ नहीं मालूम, वर्ड भी नहीं मालूम। मेरे लिए ग्रेजुएशन कोर्स इन माय लैंग्वेज एक कॉलेज है, भूगोल तो आकर्षण है, क्या समझ में आया। लेकिन मेरे लिए ऐसा वर्ड मालूम कभी यूज किया, तो हर एवरी वर्ड आई हैड टू इंग्लिश बिकॉज आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और मैंने एक ब्रांच लिया पढ़ने के लिए, वो था प्रिंटिंग इंजीनियर। आप सुना भी नहीं होगा, मालूम नहीं, मतलब वही तो। मैंने प्रिंटिंग सीखा, अगेन चूज किया। मेरा फादर पापा ने बहुत मना किया, तो मेरे एल्डर ब्रदर्स है, तो वो दोनों कंप्यूटर साइंस में, एक MCA किया, दूसरा MSc मैथ्स करके MTech किया। तो मेरे फादर वाज वेरी प्राउड ऑफ एल्डर टू। तो हम कुछ शादी में फंक्शन में जाने समय मेरा पापा ने ये दोनों को इंट्रोड्यूस किया, ये दिस माय एड्रेस कंप्यूटर साइंस, ये ऐसा क्या करेंगे, क्या करेंगे, दिस थिंकिंग वाज लाइक दैट। So he kept me away. I felt very offended, insulted. What I can do, the choice of mine. That's what I don't know. And then, anyway, मैं ये चूज किया। मैं आपको आज बताऊं, 3-4 साल पहले हमारा फैमिली गेट टुगेदर, वो फैमिली गेट टुगेदर में मेरा 2 भाई सिस्टर में वहाँ डिस्कशन हो गया। डिस्कशन होने के बाद अरे हम लोग हेल्प किया, हमने कंप्यूटर साइंस, हम लोग प्रिंटिंग लेने का। एक क्यों बोला मैंने, क्यों बोला, रीजन ये है, बाय स्टडीइंग प्रिंटिंग आई ट्रैवल्ड 52 कंट्रीज, पूरा दुनिया घुमा है कई बार। The whole world I traveled a number of times. I worked with a German company, 7 years I worked in Germany. क्या 77 यूनिवर्सिटी में गया। You talked about Harvard, you talked about Cambridge
any kind of institution, I had the opportunity to go into the audit. I got all these options only because I opted principles. So after seeing this, my brothers were telling, "अरे we would have chosen." मैं ये स्टोरी क्यों बोला? तो स्टोरी नहीं, रियलिटी क्यों बोला? बच्चों, अभी आप भी यहाँ एडमिशन लिया है, कुछ ना कुछ ब्रांच लिया होगा, उसमें कंप्यूटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मैकेनिकल होगा, मैनेजमेंट होगा, और प्योर साइंस होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मुझे मालूम है ऐसा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिया होगा। ये सब्जेक्ट लेने के बाद परिवार में कई बार बाहर से लोग आता है, तो ये बोलने समय आप बोलेगा मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बोलेगा अरे क्यों लिया इलेक्ट्रिकल, ये क्या करेंगे, ये वेस्ट है, कंप्यूटर में जाने। ऐसा 100 ओपिनियन बोलेगा, यहाँ से सुनो, यहाँ से कोई नहीं। I am telling you, it is not that branch of science what you have opted or engineering you have opted that is going to make you what you are. It is you have to make yourself. Okay. आज से मेरा पहला रिक्वेस्ट है, please fall in love with the subject which you have chosen. Let it be anything, any branch. I don't know what you have chosen. Every branch is equally good and equally bad. You are going to make it. Please make it. If you want, you can do it. No branch is inferior. No subject is inferior. We need everything. Otherwise, it will not work. So from today onwards, if at all you have any kind of question mark and doubt in your mind, please wash it out and tell yourself, I have chosen the right subject of study, and please fall in love with it. Unless and until you fall in love, the subject will not love you back. It's not the subject alone I am telling you. It's true with you. If I don't love my wife will never love me back. If I don't love my children, they will not love me back. It is all given. You think that subject is what? उसमें लाइफ नहीं है, तो वैसे ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्ट के ऊपर you think that it cannot communicate you back, but you will reach a stage where you will see the subject will communicate you back, and you will start learning automatically self-learning. When you do the mananam, nididhyasanam, mananam, ये दोनों meditation, contemplation, mananam, when you do that, slowly the subject will generally start. So my first advice, please fall in love with the subject whichever you have chosen. Don't listen to anybody now onwards. If you don't do that, you will be wasting your time here. You think that Amma will manage उसपे काम नहीं चाहिए. So this is my first lesson I want to tell you. And I am very unlucky because I lost my father 43 years ago. He met with an accident and he died. So I couldn't show. When my first year result when I came, I couldn't show it. I was a rank holder in my engineer. Throughout my study, I did very good because I love my subject. That's the reason, not because of my intelligence. Don't think that. So please fall in love. And I'm sure my father sitting in heaven must be watching today, seeing the achievements of his son. And the people who ask me what you will do with this, मैं 3 बार वाइस चांसलर बना सरकारी यूनिवर्सिटी में, आज भी मैं ओएसडी हूँ, हरियाणा सरकार में ओएसडी हूँ, इसी का इक्वलेंट है। मैं बोला था मुझे नहीं चाहिए, अभी एक्सटेंशन नहीं चाहिए, बट सीएम साहब और टीम बोला मुझे आप कंटिन्यू करो, ठीक है मेरे पास। लास्ट टाइम मैं व्यक्ति को मिलने समय में बोला आई नॉट श्योर आई मे नॉट बी इन दिस डेजिग्नेशन, और आई नो दैट आई एम नॉट इन द सेम। और इतना वर्ल्ड में घूमा, इतना अचीवमेंट्स मिला, एंड आई वर्क विद अ कंपनी वेयर आई वाज अ कंट्री हेड फॉर हेड टू इंडिया, हेडिंग इंडिया स्टैटिस्टिक्स एंड मेट्रिक्स। व्हाट एल्स यू कैन डू, यू चूज एनी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज नॉट नीडेड। मैं यही बताने का, इट इज नॉट द सब्जेक्ट यू आर। सुंदर पिच्चे इसे मेटलर्जी है, यू नो दैट। सुंदर पिच्चे इसे मेटलर्जी है। somebody would have asked मेटलर्जी लेके क्या करेंगे, वो आज दिखाया क्या करेंगे। इतना ही लाइफ है, तो इतना ही। डोंट वरी अबाउट द चॉइस,
if you master the subject, all roads will lead to Rome. You will reach in the second. और मैं आपको ये बताया था मुझे आर्मी के ऑफिसर बनने का शौक था and I went for a selection. मैं सिलेक्शन पे जाके सारा रिटन टेस्ट सब में क्वालिफाई किया लेकिन उसमें मेडिकल टेस्ट रनिंग सब में नहीं किया उसमें आई टेस्ट करते हैं आपको मालूम है जैसे किसी का टेस्ट प्लेट in which they will check the color blindness and your sight 6x6 level sight वो सब ठीक था लेकिन unfortunately I had color blindness some percentage of color blindness and it is an inborn deficiency it's not a disease it's an inborn deficiency there is nothing what can you do now there are some treatments available and only because of this I was rejected from army I was thrown out I came out crying myself आंखों से आंसू आए मुझे आज भी याद कोयम्बटूर के 10 मैं बाहर आ गया रोना शुरू हो गया तो मेरा दोस्तों को मिला मुझे नहीं मिला क्या करेंगे लेकिन मैं सोचा पढ़ेंगे पढ़ के देखेंगे पढ़ाई में गया दोस्तों you don't believe it my research is in color science the first PhD produced under me was on color science I developed a special model he knows it he is my student his teacher professor sitting in GJU both of them are my students both professors in Budapest University they did PhD under me so that was the color science project a person who was thrown out of selection telling that you are colorblind produced the first PhD in this and I developed a model and also applied in textile industry where I offered technology for Indian Army आपको पठानकोट का इंसिडेंट मालूम होगा वहाँ पाकिस्तानी लोगों का क्या अटैक किया रीजन क्या था वो हमारा जवान का वर्दी पहन के आया हमें मालूम नहीं था ये कौन है अभी मेरा टेक्नोलॉजी है उसमें भारत का फ्लैग है यू कैन प्रिंट द फ्लैग इट्स एन इनविजिबल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इट कैन बी सीन ओनली थ्रू infrared camera surveillance cameras so in 1 second you can make code which is original which is duplicate and it is not visible with the naked eye at all and you cannot copy it and this technology we use in it and army chief luckily ये भिवानी वाला था जनरल वीके सिंह साहब मंत्री भी करके आपने बोला बहुत अच्छा लिख very same Indian Army Ministry of Defence called me and gave me honorary colonel. Today I am an honorary colonel. A person who was rejected, thrown out of army for selection, they have been messed with. He is given ऐसा 20 साल के बाद 25 साल के बाद वापस मिला भाई ये लो कर्नल पूरे आने कर्नल आप ये बताइए क्या पॉसिबल है इतना ही है ये कॉन्फिडेंस होना था और तीसरा थिंग क्यों मुझे रिजेक्शन हो गया कलर ब्लाइंडनेस के रिजेक्शन and I used PhD and developed a color model based on this there is a apex body in UK London called Society for Dyers and Colorists SDC I am a voting member in their board SDC gave me silver medal the second highest award what they give to the color research I got the second highest award and also they made me a permanent voting member in their board इसको दिया वो बंदे को बाहर कर दिया इसको कलर ब्लाइंडनेस लाइफ इतना ही आपका भी लाइफ में ऐसा ही you don't need to worry about it now next experience मैं बताएंगे when I was in my final year of engineering हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया आए टाइम्स ऑफ इंडिया के सब रटन में मैं परफॉर्म करता हूँ इलेक्ट्रिकल अच्छा है क्वालिफाई हो गया 8 लोगों को बुलाया फाइनल इंटरव्यू के जीडी ग्रुप डिस्कशन वो ग्रुप डिस्कशन किया प्रोफेसर यशपाल आप सुना नहीं होगा माय कोलीग्स मस्ट बी नोन ही वाज द यूजीसी चेयरमैन सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज राइटिंग फॉर इकोनॉमिक टाइम्स फ्रॉम दोस तो वहाँ हमें बिठा के उन्होंने 3 टॉपिक दिया ग्रुप डिस्कशन one had one more policy deteriorated the quality of teaching long-term planning is irrelevant in the dynamic growth of modern technology. Then
necessity of crafting agricultural graduates in India. These were 3 topics we must I still remember. मेरा ग्रुप ने डिसाइड किया हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह का। लेकिन आपका ये पूरा बच्चा गांव से आया है, अंग्रेजी भी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम है, बहुत तकलीफ था। मैं ऐसे पीढ़ी में बैठ के देखता है देखा ये देखो, तो वो सब अच्छा स्कूल से आया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से आया। They all had their backpack, that kind of wonderful English. I started crying, हमको से आंसू है। तो यशपाल जी मेरे पास आके पूछे सर क्या हाल है बेटे क्या हो गया? मैं बोला सर मुझे बताने का है, मेरे मन में है, लेकिन मुझे अंग्रेजी मालूम है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, आपको आपका मदर टंग मालूम नहीं क्या? भाई जो हाँ ये अच्छा है। तो मैं आपके लिए एक मौका दे देंगे, आपका मदर टंग में बात करें 2 मिनट। आपका फिर सर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, वो डोंट वरी, मैं पूरा कॉन्फ्रेंस में अपना मदर टंग में भाषण किया। मेरा मैं बोला लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं, मैं सबको एग्री नहीं किया, मैं बोला मेरे लिए वो रिलेवेंट है, रिलेवेंट है बात। क्लास 6 बच्चों को सेलेक्ट किया, मुझे भी दिया। आई वाज द 6th one. He told I took you very specifically because of your background and आपका truthfulness. ये दोनों के लिए आपको देखता हूँ तो मुझे सिलेक्शन। लेकिन उस दिन उन्होंने बोला today you need to begin over. From today onwards, you will put all your efforts to improve your English. Because without improved English, you cannot communicate with the world. You need to have a command over the language. You can't do anything. No other option. I just touched his feet. took his blessing. I wrote himself from today onwards I start my journey. I was dying until and later it is just a history. Today English is better than for me for my mother tongue. I can handle English much better. Of course, later, some part of my life, somewhere in 2000, I was called to a college called London College of Communication, LCC. It is in Elephant and Castle in London. So they arranged a lecture and I did a lecture in English. So I told them, I speak Indian English, not your English. My accent is pure Indian, but I try to be as genuine as possible. There is no issue. But I'll make it a point that I not make a mistake when I speak. And lately, 1 hour 15 minutes, I had a wonderful lecture there. After that, they came to me and asked, how do you speak? Correct English, good English. I told this is slight difference between you and me. You people, you picked it up. I learned it. That's the difference. This is what we said. Later, 5 years continuously, I visited this college and delivered lectures. ये देखो, वही बच्चा है, वही गांव से आया, उसके पास चप्पल नहीं था, भाषा मालूम नहीं था, कुछ नहीं था। ये आपको भी बताना चाहता हूँ। इसमें कई बच्चे गांव से आए होते, मेरे लिए गांव से। आपको थोड़ा शर्म होगा, मेरा अंग्रेजी ठीक नहीं है, अंग्रेजी ठीक होने का जरूरत ही नहीं, छोड़। आपका अंग्रेजी में बात करने समय ये भी सुनो, बाई चांस इफ देयर इज अ स्लाइट हरियाणवी टंग, तो ये थोड़ा कड़वा लैंग्वेज है, वेरी स्ट्रॉन्ग, उसमें वो भाषा का थोड़ा टच आ गया। बी प्राउड ऑफ इट, यू नो व्हाई? इट इज आवर मदर टंग। मदर टंग यू कैन नॉट रिजेक्ट। If you try to act and speak in a different way, क्या होता है? You are hiding your mother. Why you want to do that? There could be, but see that you speak clear English without mistake. That's more important. The pronunciation part, make it as dynamic as possible. Accent, never ever accent. You don't need to. This is what Singapore Prime Minister, who built Singapore, he said, I speak English. I can speak a better Chinese, but I speak English only because it's a language I have. So the same way, you speak Indian English. You don't need to speak an American English. You don't need to speak a Brit English. Brit accent is their mother tongue, influence of their mother tongue. My mother tongue is from my country. It could be Haryanvi, it could be Hindi, it could be Malayalam, Tamil, whatever it is. You don't need to worry about it. So कल आप हिंदी में और
पूरा अंग्रेजी में बात करने में उसमें पूरा अंग्रेजी का चाहे शुरू नहीं की बनेगी आने उसमें क्या है पहले बात करने को सीखो अपना मदर टंग है ना उसमें आपको गर्व होना चाहिए और आपके बीच में बात करने से अब हरियाणवी है तो हरियाणवी में बात आप लोग ये बात नहीं करते तो कौन करेंगे आप बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर मदर टंग और this like I am living in Haryana since 20 years now full time maybe 16 years I have seen the power of that language आप ये देखिए रागिनी सुनने समय रागिनी का लैंग्वेज बदल के हिंदी और अंग्रेजी में बोला तो क्या होगा 10 मिनट बैठ रही सर मैं लिख के देता हूँ उसमें ऐसा जोक बोलता है ऐसा स्टोरी बोलता है और वो गीत का क्या सौंदर्य है उसका वो आप दूसरा भाषा में कैसे कर सकते हैं हर भाषा का वो पावर है हर भाषा का वो वैल्यू है तो हम लोग हरियाणवी नहीं बात करते तो कौन बात करेंगे तो ऐसे मत सोचो मेरा बेटा बहुत अच्छा बात करता है वो स्कूलिंग एग्री के बारे में so I can't speak like him but I told him learn this language this is your language so this learning this mother tongue is very important don't feel ashamed at all anytime you go and meet a German two Germans anywhere in the world let them meet the next minute they speak in German the conference could be anything in America London anywhere सही में कल आप यहाँ से जाके कहीं जाके कोई कॉन्फ्रेंस में किसी को मिला मैं लंदन में रामदास जी के साथ गए थे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारा टीम भाई वाइस चांसलर जी था वहाँ जाके मैं वहाँ रोहतक का वो शर्मा जी है वहाँ रेडियो चलाता है उनको भी एक सेकंड में सारा हरियाणवी में भाषा एक सेकंड में कनेक्टिविटी होता है मदर टंग में बात करने समय क्या कनेक्टिविटी बनता है तो दूसरे भाषा में नहीं बनता so don't feel ashamed of it yeah this is what I want to tell you another thing never ever feel inferior just because you don't know English okay English is just a language that's all it's not the best of your knowledge Chinese ko most of the researchers they don't speak English at all many German scientists many Japanese scientists they don't speak English at all but they are all covered they are all respected why because of the concept and the content of it that's important but it doesn't mean that you can escape from a language like English India में 15 करोड़ लोग अंग्रेजी में बात करता है you cannot avoid it it's part of our system and when you want to move around the world you need a language so you need to have the skill of English you must have it don't worry about it so if you are good in Haryanvi if you are good in Hindi I don't know how many of you can really speak good Hindi I don't know so ये नहीं है तो पहले वो अगर सही हिंदी में बात करनी वो एक बार मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम था हिंदी आज भी डर है बात करने से मैं हरियाणा में अकेले सीखा इसलिए अपना हिंदी भी इतना बढ़िया नहीं है मुझे मालूम लेकिन ट्राई करता हूँ हिंदी में बात करने एंड टुडे आई स्पीक 8 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली I speak Malayalam I speak Tamil I speak Kannada I speak Urdu I speak German Hindi Sanskrit because Sanskrit is my family language so I learned it so I speak 7-8 languages today there is no issue at all so मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको मेरे जैसे गांव वाले को वहां से आके कितना कर सकता था आप लोगों को क्या नहीं कर सकता पूरा दुनिया एक फिंगर टच पे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ना नॉइस मेकिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें होता है ना एक टच पे पूरा दुनिया कनेक्टेड होता है सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है so who can complete nobody can complete your identity only thing is you have to decide yourself that I don't want to do it in Veda in Veda it says Mudha Nanupasya Sheshena Mudha in the sense that I mean some kind of idiots they decide to ignore things and I don't want to do it such people it can so never ever become that Sheshena Mudha you don't want to do that you always have the potential and whoever sitting in front of you your complexion may be different आपका कलर अलग होगा हाइट अलग होगा हेल्थ डिफरेंट होगा सब अलग होगा बट मुझे ऐसे ऐसे देखने समय ना हर बच्चा हर आदमी इक्वली ब्यूटीफुल इक्वली हैंडसम ऐसा दिखता है रीजन क्या है आपके जैसा एक ही बंदा है 700 करोड़ में है वेद प्रकाश जी जैसा एक ही बंदा है भगवान ने वेद प्रकाश जी को
इंडिया में भेजने के बाद क्या किया, तो वर्ल्ड को गए, उन्होंने बोला मुझे एक ही चाहिए 700 का। तो वेद प्रकाश जी आज अनायत करने को, बच्चाजी करने को ट्राई किया तो ही विल बी फेलियर। क्या जरूरत है उसका? मुझे 6 फुट 2 इंच की जरूरत नहीं, मुझे भगवान ने यही रूप दिया। I should tell myself every day, I am really good, I am intelligent, I am handsome. You should also tell it every day. Look at the mirror and tell every day, I am really touching, I look so good, I am beautiful, I am handsome. Based on male or female, whichever word you want to use, and tell yourself, I am intelligent. If you don't tell this yourself, don't expect a third party to come and tell you this. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला, उद्धरे उद्धर आत्मा आत्मा हमसे ये नहीं क्या है, आपका उदाहरण आप ही करना पड़ेगा। मैं क्यों बोलूं किसी का, आपका नाइबर आके आपको क्यों बोलता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा ऐसा कुछ बोला तो कुछ पर्पस होगा, ऐसा नहीं बोलता। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ ये होगा, नहीं सुनो, नहीं तो कुछ नहीं। तो एवरी डे माय डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, कल सुबह उठने के बाद मिरर में देख के बोलो, look at the mirror on your face, you are confidently both eyes and tell yourself, I am so good, I am looking so good, I am very handsome. 10 days you tell, 11th day you look at your face, the glow would have come. आप देखने में अच्छा होगा। You tell yourself, I am intelligent, I have enough intelligence, and try to solve the problem. फर्स्ट वीक में नहीं मिलेगा, सेकेंड वीक में आप सॉल्व करेंगे 100%। उसमें कुछ there is no issue। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बताने, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ में। आज मैं ये आपसे शेयर करता हूँ, मुझे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप मेरा अंदर से क्या आता वही बात करता हूँ। मुझे मालूम ही नहीं था क्या क्या ऑडियंस है, कौन कौन है, इसमें कौन बैठता है, मुझे मालूम नहीं। बट माई पर्पस यही था, whatever I want to speak, I want to be original. And I am not marketing my biodata. 60 होने वाला है, I don't need a job. My those days are over. So selling my biodata is not in my life. वो सब हो गया, उसका जरूरत ही नहीं। I'm not looking for a job. I'm not looking for any other assignment. मुझे नहीं चाहिए। I want to meet people like you. When I talk to people like you, that gave me an energy, that boosts me up. This is what it is forward. That's what I'm doing. No other purpose in it. So always mind से ये सब करना, एक्सेप्ट कोई भी inferiority complex है, एक आदमी को नीचे करने का नंबर 1 रीजन यही है, उनका inferiority है। We are not inferior to anyone. And why? When Buddha was needed, भगवान ने बुद्धा को भेजा दिया। When Krishna was needed, he sent Krishna. When Muhammad was needed, he sent Muhammad. When Christ was needed, he sent Christ. When Ved Prakash was needed, he sent Ved Prakash. So, अपने लिए one of you identify the uniqueness. What is that in you? Everybody may not have the same thing. Your abilities, your capabilities, your understanding, all these are based on the trying to understand the uniqueness in you. That uniqueness, the moment you identify, your life is set. Then you can do whatever you want to do. Because there is only one person like you. You are a unique beast. But never ever try to change your identity. Retain your identity as it is. And never ever try to be with anybody else. No competition with others. We don't need to compete at all. ये दो चीज, just to prove you that, and just to take little relaxation, I'll take a small game with them. It's okay with you. You also can join them. अभी मेरे लेफ्ट में इतना बच्चा बैठा है, टीचर्स भी है, राइट में भी बैठा है। What I want to do is, मैं आपको ये बताएंगे, मेरे लेफ्ट साइड में बैठा है, ये लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन का नॉलेज, लेकिन आप लोग बुद्धिमान, सारा आपको 0 से इंफिनिटी तक सारा नंबर मालूम। आपको क्या मालूम? 0 से इंफिनिटी। 0 से 4 तक, 4 तक, 4 के बाद क्या नंबर है मालूम? ये है। और आपको मालूम है इनका नॉलेज कितना है,
इनको भी मालूम है, आपका नॉलेज पूरा है। तो पहला फीलिंग क्या होगा ये लोगों का मन में, और ये लोग बहुत नॉलेज है, आपका मन में क्या है, ये मालूम है। Now let me tell you, if I tell you to count, how you count? 0 से कहाँ तक जा सकता है? 0, 1, 2, 3 up to infinity. ठीक है? मैं आपसे बताया तो आप कैसे काउंट करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 4 के बाद क्या करेंगे? बुद्धि दिया है ना, 0 1 को जोड़ो, 10 हो गए ना, 10 के बाद 11 12 13 14, 14 के बाद 20 बनाएंगे, हमें 2 और 0 मालूम है, 20 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद 30, 34 के बाद 40, उसके बाद 100 बनाएंगे। आप कहाँ तक जाएगा? आप भी जाएंगे इंफिनिटी तक। What does it mean? What does it mean? It is not a amount of knowledge you have. It is the ability in utilizing the knowledge what you have. Never ever feel inferior. आपको आपके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया तो क्या होगा? अरे ये तो तुमको सारा मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम, वहाँ छोड़ने का never ever come up with an inferiority complex. I don't know, ऐसा सोचने का बात नहीं। और दूसरा, अभी आप लोग मेरे लिए छोटा काम कर रहे हैं, I'll give you 10 seconds time. 10 सेकंड के अंदर आप नंबर काउंट करो मन में, आपको भी ज्वाइन कर सकते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो मैं आपका टाइम शुरू करूं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। कितने लोग 20 तक काउंट किया? 30, 40, 50, 60, 70। आपका कितने तक पहुंचा? आप कितने तक पहुंचा? 70, 70। आप 70 के ऊपर आप कहाँ पहुंचा? 96। क्या बात है, आप सच्चाई बोल रहे थे। So I think 96 is the highest number someone to count. Is it so? आपका नाम क्या है? तमन्ना सिंह। तमन्ना, बैठो। तो मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ यहाँ, अभी इतना ग्रुप में मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट इज कौन? तमन्ना। ओके, अभी आप ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनो। नाउ आई एम गोइंग टू सेट द रूल ऑफ द गेम। ओके, आपको क्या करने का है अभी? You have to count one number more than what you counted before. Okay, what you need to do? समझ में आया ना सबको? Take it very light, just like a classroom. Don't be serious. आपको अभी क्या करने का है? पहले आपने कहाँ तक पहुँचा, उसका भी एटलीस्ट एक नंबर ज़्यादा काउंट कर रहे हैं। Are you ready? Yes. Okay, your time starts now. Stop. So how many of you could cross that? Raise your hand. Raise, don't worry, raise. See, many of, almost all of them could count one more than one. What does it mean? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? There is a big difference between the last time and this time. This time, number one, you set a goal. ठीक है ना? आपने आपके लिए गोल सेट किया। गोल क्या था? मैं पहली बार कितना काउंट किया, उसका भी एक नंबर ज्यादा कर।
कितना ही होगा? आपने सोचा है कि आपका नेबर कितना काउंट करेंगे उस समय? आपके नेबर के बारे में सोचा? दोस्तों यही करो लाइफ में, अपने लिए कोशिश करो। आसपास कई लोग बैठेगा, उनसे कंपेयर मत करो, वो अपना बात ही नहीं। सेट योर ओन गोल इन लाइफ। यू हैव टू सेट योर ओन गोल इन लाइफ। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, with whom you did the competition? You did a competition? You are not bothered what others say. You are a very specific target, and I am going to count at least one number more than what I counted. What does it mean? You have progressed, isn't it? So इसमें leader कौन है? आप सब लोग, not तमन्ना है। Everybody is everything. Let us give a clap to ourselves. Each one of you are winners. That is what happens. If you apply this principle in life, 100% you are going to be successful in your life. How? When you do so in life, in Bharat, especially in a place like Jeev, जीत का नाम कैसे आया बेटे? ऐसा एक नाम है। यहाँ कोई देवी मंदिर का नाम सुना? ये जयंती देवी का मंदिर है यहाँ। पांडव लोगों ने वहां प्रार्थना करके गया वर्ष के लिए। जीत जैसा जगह पे आके जीत नहीं कर सकता है तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। यू अंडरस्टैंड? बी प्राउड यू आर इन जिंद। मैं मेरे जिंद जिंद बोलता हूँ, मेरा हरियाणवी में जिंद नहीं था, वो जींद। यहाँ कई वर्ड है ना, शॉर्टिंग करता है, कई वर्ड कंटेंट करता है। सोनीपत को सोनपत बोलते। मेरा गाँव है अनायत गाँव, सोनीपत में, वो है मेरा नाम। मेरा पूर्वज यहाँ से गया। मैं वहाँ जाके रिकॉर्ड में देखा, वहाँ लिखा है अनायत। एक कहते पढ़िए कि सही लिखा है, लेकिन बाकी सारे भी यहाँ तो बोलते हैं। हरियाणवी में सब पास, सोनपुर को सोनपुर, बिहारी को बिहारी। ये अनायत एकदम ज्ञात, तो आप है ज्ञात हो, लेकिन जिंद को जीत को ऐसा दिस काइंड ऑफ केसेस आर वेरी मच। सो जीत में जन्म लेके आपको जीत नहीं करता है तो क्या वेस्ट करता है? इफ पांडवस टू टेक देयर बाय प्रेइंग हियर टू जयंती देवी, व्हाई नॉट यू? टुडे इज अ वंडरफुल डे, फर्स्ट मिनट make it prayer, so that they had nothing, only 5 people. They went and fought with such a strong army, and they carried the entire people. You know that. I don't need to explain more. They have gone in this sacred land where this is given, and when you do so, especially in Haryana, in the whole country, in Bharat, another concept of we say, I want to do things without attachment. वो अभी करने का है, attachment you should not have. Now your job is to study. Don't bring any attachment with that. Okay. In Bhagavad Gita, it says, यज्ञार्थात् कर्म पुण्यंत्र, योगोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय, मुक्तसंगः समाचरः. What does it mean? तदर्थं कर्म कौन्तेय. Tadartham means yajnartham, as a worship. Whatever work you do it like a worship, like a yajna. The bhava should be like a yajna. Tadartham, yajnartham, as a worship. Now I got an opportunity to come to the first day of yours, and I am getting an opportunity to address all your students and some teachers.